بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم بات کریں گے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. ایک دھڑلے سے اچانک اے پی سی بلائی گئی, بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک جگہ گیدر کیا گیا. مجھے یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے بھی 9 ستارے اور بہت سارے مذہبی اور پولیٹیکل گروپ بنتے رہے. کیا آئینی حکومتیں انہی جلسے جلوس اور لانگ مارچ اور احتجاجوں سے ہٹائی جائیں گی؟ آئینی آپشنز موجود ہیں. اب پاکستان پیپلز پارٹی آئینی آپشن کی طرف جا رہی ہے یا پی ڈی ایم سے کنارہ کشی کی طرف آگے جاتے ہوئے ان کے معاملات نظر آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ وفاق کی طرف آؤں گا. آفریدی صاحب, پی ڈی ایم کو بہت ساری آپ کی اسٹریٹجی رہی. پہلے آپ لوگ گرفتاریاں بھی کر رہے تھے, اب آپ ان کو اسپیس دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں, آپ کا آئینی حق ہے, آپ احتجاج کریں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سکسیس جا رہے ہیں اور یہ لانگ مارچ اور یہ آہستہ آہستہ تتر بتر ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, حکومتیں اگر جانی ہوتی تو ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا. ایکسپیرینس ہے ہمارے پاس, ہم وہاں بیٹھے بھی اور اپنے مطالبات بھی رکھے. ہمارے پاس مطالبات تھے کہ آپ 4 حلقے کھولیں, ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ہم کورٹ کے اندر گئے, ہم نے تقریباً اس وقت 164 ہم نے اپلیکیشنیں جمع کرائی تھی کورٹ کے اندر, اور آج یہ کہہ رہے ہیں نا ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. آج ٹوٹل 56 اپلیکیشنیں جمع کرائی ہیں, 56 میں بھی 30 ہماری ہیں. ان کے پاس کیا ہے؟ اور دوسرا, انہوں نے لاہور کی عوام نے, پورے پاکستان کی عوام نے انہیں ریجیکٹ کیا ہے. یہ دیکھیں, وہ مریم بی بی جب کھڑی ہو کر کہتی ہے وہ ریجیکٹڈ, سلیکٹڈ, اور وہ سلیکٹڈ بھی خود ہیں, وہ پارٹی کے اندر اوپر سے چھتری لے کر آئی ہیں. وہ ریجیکٹڈ بھی عوام نے انہیں ریجیکٹ کیا ہے, گلگت میں بھی کیا, یہاں بھی عوام نے, پنجاب میں بھی کیا. ابھی الیکشن کمیشن کے باہر 11 ملک کی پارٹیاں جنہوں نے اس ملک کو ان 30 سالوں اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, وہ 11 پارٹیاں نکل کے جاتی ہیں, لوگ ہی نہیں آتے ان کے ساتھ. ہاں مہنگائی, لیکن کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے جو اچھے اقدام ہیں, بینگ آپ حکمران ہیں, ان کو اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں, چاہے وہ 18th امینڈمنٹ ہو, 18ویں ترمیم سے ملک تباہی پر چلے گئے ہیں. کوئی آپ کا لک آفٹر نہیں ہے سندھ کے اندر. آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. 18th امینڈمنٹ کو ختم کیا جائے, بالکل ختم کیا جائے. اگر 18th امینڈمنٹ کو 2/3 اکثریت سے 2.5 سال کے عرصے سے تمام متفقہ طور پہ 4 صوبوں میں رائج ہوئی. بہت ساری صوبوں سے لوگوں میں محرومیاں تھیں کہ صوبوں کا بجٹ صوبوں پہ لگے, صوبوں کی لوگوں کی نوکریاں انہی کو, مقامی لوگوں کو ملے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, لک آفٹر ختم ہو جاتی ہے آپ کی. میں سندھ کی, میری یہ ذاتی رائے ہے, پارٹی سے ہٹ کر. آپ مجھے نہیں پتا ہماری پارٹی کا کیا موقف ہے اس کے حوالے سے, مگر 18ویں ترمیم جماعتوں کا اس ملک کے لیے کہنا ہے کہ یہ وفاقی حکومت, ان کا جو مقاصد ہے, جو ان کے ایمز ہیں, وہ 18th امینڈمنٹ کو ختم کرنا ہے. کیا اسی پہ عمل پیرا ہے؟ آج کا بیان ہے سی ایم صاحب کا کہ میں وزیر اعظم کو جواب دہ نہیں ہوں. آج کا بیان ہے سی ایم صاحب کا. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یار؟ یہ کیوں ملک کے وزیر اعظم کیوں نہیں آپ سے پوچھ سکتے آپ نے کیا کیا ہے سندھ کے ساتھ؟ کہاں گئے اربوں روپے کے بجٹ؟ کہاں گئے؟ زمین کہاں گئی, آسمان کہاں گیا, پیسہ کہاں گیا؟ اچھا 22 لاکھ آپ نے راشن بانٹ دیے, وہ کون سے اندھیرے میں بانٹے؟ روشنی کہاں تھی؟ آفریدی صاحب, میں آپ سے محترمہ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. آفریدی صاحب, آپ ٹریک سے جا رہے ہیں, میں جواب آپ سے چنا پوچھ رہا ہوں, آپ جواب کچھ اور دے رہے ہیں. آپ لیکن کمپلیٹ سنیں. بالکل 18ویں ترمیم نقصان دہ اس کی آج کے حالات میں. دیکھیں, دور پر چیزیں چینج کرنی چاہیے. شاید 18ویں ترمیم اس سے پہلے ٹھیک ہوتی, مگر آج جو صورتحال چل رہی ہے, آپ کو کم سے کم صوبوں کے اوپر نگرانی ہونی چاہیے, مرکز کی, فیڈرل کی. اور فیڈرل دیکھے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب یہاں دیکھ لے کہ کراچی کے اندر انہوں نے کوئی 1 روپے کا بورڈ نہیں لگایا, انہوں نے کام کرانا ہی نہیں ہے کراچی کے اندر. لوارث چھوڑا ہوا ہے, کیونکہ پہلے ایم کیو ایم سیٹیں اٹھاتی تھی, اس بار پاکستان تحریک انصاف نے 16 سیٹیں اٹھائی ہیں. میں پوچھ لیتا ہوں محترمہ, آپ آفریدی صاحب کا کہنا ہے کراچی میں آپ نے کام نہیں کیا, اور اس بات میں بہت ساری صداقت بھی ہے کہ آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ آپ کورنگی سے آپ کا تعلق ہے. کورنگی مجھ سے زیادہ آپ جانتی ہوں گی, سیوریج سسٹم نہیں ہے, پانی نہیں ہے, ایسا ہی ہے. آپ ہیڈرنٹ پہ جا کے چھاپے تو مارتے ہیں, پانی فراہم کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا کوئی وہاں پہ بھی کوئی مافیا آپ کو بھی کام نہیں کرنے دے رہا؟ آپ تو صاحب اقتدار ہیں. تیسری بات دیکھیں, اگر ہم کراچی کے اندر کام کرنے کی بات کریں, ہمارے پچھلے چند سالوں میں, پچھلے 4 سے 5 سال میں ہم نے جتنا کام کیا ہے, آپ کا روڈز کا انفراسٹرکچر ہم ٹھیک کر رہے ہیں, آپ کی اس کے علاوہ ہم بریجز بنا رہے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو گن کے بتا سکتی ہوں,
गिन के बता जी, सकती complete हूँ। करें, complete करें। हमने कुरंगी में देखें, कुरंगी को कंट्रोल करने के लिए कितने ब्रिजेस बने हैं, कितने फ्लाईओवर्स बने हैं, रोड्स बन रहे हैं, कंटिन्यूअस बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया का रोड बन रहा है, उसके अंदर 100 फीट रोड है, 1000 फीट रोड है। उसके अलावा जो है आप अगर तफरीह के हवाले से देखें तो आप बारादरी देखें, आप हॉक्सवे रोड भी देखें, कितना खूबसूरत जरूर देखेंगे, इंशाल्लाह चलेंगे आपके साथ और आपको भी दिखाएंगे। और मैं चैलेंज करता हूँ, वहाँ से कोस्ट गार्ड कोई गाड़ी चुरंगी, गुजर नहीं सकती। कोस्ट गार्ड चुरंगी देख लें, इसी तरह हम एक जहांगीर पार्क देख लें आप। उसके अलावा क्योंकि हमने असासे थे ना, हमने असासों को वापस रिकवर किया, हमने उनको उनकी असल हालत में लाने की कोशिश की और लेके आए, हम कामयाब हुए। हमने रोड्स पे भी काम किया, हमने स्कूल्स पे भी किया। नहीं, 30 सालों में आपके बड़े भाई मुशर्रफ भी मोहतरमा, शामिल हैं। पाकिस्तान हमने एक स्कूल बदतरीन देखें, क्राइसिस एक से मिनट सर, गुजर रहा मुझे है भी और कंप्लीट करने दें ना, मुझे भी आपकी कंप्लीट करने दें। हॉस्पिटल्स का निजाम सिंध में इस वक्त सबसे बेहतर है। 6 NICVD हैं हमारे पास, गवर्नमेंट फंडेड है। हम जब मीडिया पे देखें, अभी जो 100 सर्जरीज हुई गंबट के अंदर, और उसके अलावा अब जो हम करने जा रहे हैं यहाँ पर NICVD में, आपका फालिज अगर आपको हो जाता है और अगर आप 4 से 6 घंटे में पहुंच जाते हैं, तो आपको जिस तरह हम ओपन हार्ट सर्जरी हो सकती थी, वो इस तरह का कुछ सिस्टम, मैं डॉक्टर नहीं हूँ ज़ाहिर है, वो सब भी यहाँ स्टार्ट हो रहा है फरवरी से। देखें, आप इलाज अच्छा कर रही हैं मोहतरमा, आपकी मशीनरों से जो भी वहाँ पे इक्विपमेंट है उससे हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन जब एक कॉमन मैन एडमिशन के लिए जाता है, जब वहाँ इलाज मुआवजे के लिए जाता है, तो उसको लंबी लंबी कतारों का सामना होता है। अंदर का जो निजाम है, अगर आप फ्लो नहीं बर्दाश्त कर सकते तो आप उसमें कुछ चेंजिंग लाएं, बेड्स की तादाद बढ़ाएं। आप ये देखें कि आप उनसे ये सवालात किए जाते हैं कि जी आपका जिस मर्ज के लिए आए हैं इसके लिए हम आपको एडमिट नहीं करेंगे और ये दवाई और आप चलते बने। नहीं, ऐसा चलते बने वाला मामला नहीं है। जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनको वहाँ पर फौरी ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके लिए हम लोगों ने 6 अलग डिस्ट्रिक्ट्स, अब तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं, हमने 6 अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हमने वैन्स भी बनाई हुई थी। मुझे एक उनका फौरी जो इलाज वाले लोग हैं वो वहाँ पर चले जाएं, जिनको वहीं से हो सके और वहाँ रश ना बने। फिर उसके बाद जी नहीं, ये कराची की बात है, NICVD की बात है। आपको मैं वो भी कहूँगी कि चाहे आप विजिट करें, मैं नहीं लेके जाती वहाँ। कराची में तो आप खुद घूमते होंगे, देखते होंगे, आप इग्नोर कर रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि आप अच्छे कामों को सराहना नहीं जानते, क्योंकि करना नहीं जानते। आप NICVD की या जना की या सिविल की या आबासी शहीद की या किसी भी हॉस्पिटल की बात करें, जब वो गवर्नमेंट फंडेड होता है, वो फ्री होता है, चाहे वो पब्लिक के तामन से हो, किसी के भी तामन से। पहले आते हैं लोग, सिविल में आके सो जाते हैं, अगले दिन चेकअप कराते हैं, बड़ी बड़ी लाइनें, बड़ा सिस्टम। इसलिए क्या बोल रही है मेरी बहन, मुझे तो यही, नहीं, बड़ी लाइनें, लाहौर में चला जाता हूं, बड़ी लाइनें हैं, बिल्कुल बड़ी लाइनें हैं। कहां पर सवाल क्या है, फ्री क्यों इलाज ठीक नहीं कर रहे? नहीं, फ्री इलाज मिल रहा है ना, तो फ्री इलाज में आप सहूलत पूरे देना पाकिस्तान में होता है फ्री इलाज। सहूलत ही दे रहे हैं ना। हमने सेहत कार्ड दिए हैं फ्री इलाज के लिए, 10 लाख रुपए। पंजाब में आप लोगों ने टेस्ट की कीमतें बढ़ा दी, जो फ्री होते थे वो अभी 2 हजार रुपए में होते हैं। हमने तो 10 लाख रुपए। आगे बढ़ते आपको बहुत एहसास है आवाम का, आगे बढ़ते। हमने इसीलिए हर डिवीजन में कोशिश की कि हम डिवीजन्स में हॉस्पिटल्स की तादाद को बढ़ाएं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं, अच्छा जहां फ्री इलाज होगा, जहां लोगों की सकत नहीं होगी कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके इलाज करा सकें, तो वो आएंगे हमारे पास और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आएंगे। जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखें मुस्तकिल बढ़ रहे हैं, आप जिना के आज से 15 साल पहले की बेड्स की तादाद देखें और उनके डिपार्टमेंट्स की तादाद देखें, उनके वार्ड्स की तादाद देखें, और उसके मुकाबले में आज अगर आप जाके देखें तो हमें वहां पर कितनी तोसी मिलती है। चले आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत एहसास है अवाम का, सहूलतें आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सिंध में आप साहिब इक़्तिदार हैं। बदतरीन क्राइसिस से पूरी दुनिया गुजरी, कोविड-19 से। आपने देखा पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी मुल्कों की मईशत बैठ गई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, और PM साहब की कुछ स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी को भी अप्रिशिएट किया गया ताकि लोग भूखे ना मर जाएं। आपको पता है ऐसा तबका भी है जो रोज कमा के रोज खाता है। बिल्कुल। अब आप जिस सियासत की तरफ, जिस धरनों की तरफ PDM जा रहा है, आपको लग रहा है कि आप इस आवाम के खैर ख्वाह हैं? देखें, अवाम का खैर ख्वाह जो है वही निकल रहा है इस वक्त, क्योंकि जिन्होंने अवाम के खैर ख्वाह होने का दावा सिर्फ किया था वो 2.5 साल में कुछ नहीं कर सके, 24 करोड़ में कुछ भी नहीं कर सके। मैं आपकी बात पे नहीं बोलती हूँ, मुझे बोलने दें। 2.5 साल में आप अगर कुछ कर सकते होते तो आपने कोई तो स्टेप्स लिए होते।
कुछ तो नजर आता हो, कुछ तो नजर आता है कि हेल्थ आपने कार्ड कुछ किया। और हेल्थ नया कार्ड नया पे पाकिस्तान आपको हाउसिंग इतना हो रहा है, स्कीम, एहसास 30,000 प्रोग्राम। रुपीस का इलाज होता है, जिसमें केपीके कह रहा है, केपीके हॉस्पिटल्स वाले कह रहे हैं कि हमारे लिए ऑलरेडी जो इन्होंने जो पैसे देने गवर्नमेंट ने वो हमें नहीं दिए हैं, इसलिए हम मजीद सेहत कार्ड पे इलाज नहीं कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मीडिया कह रहा है, ये चलें। अखबारें कह रही हैं, और ये लास्ट इनकी कमेटी कह रही है। ठीक है, जो वहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। लास्ट अफरीदी साहब, लास्ट क्या पाकिस्तान की आवाम के लिए आप वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा सरप्राइज है? देखिए, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के घर भी अभी तक नहीं मिले, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके अभी भी ताखीर का शिकार हैं। 2021 में ये तमाम मरातें, तमाम सहूलियात जो आप लोग लाए हैं जिस विजन के साथ, मिलेंगी? देखिए इंशाल्लाह, एक तो कराची की आवाम को हम जो सर्कुलर रेलवे हमने दिया है और उससे बहुत फ़ायदा होगा, एक गरीब आदमी का फ़ायदा होगा। इसी तरह से एहसास जो हमारी रजिस्ट्रेशन हो रही है, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सेंटर बने हुए जहां पर कोई खान वो साहब तो की पुराना तस्वीर, वजीर आजम साहब की कोई तस्वीर नहीं बनी है। आप उसको लेके चल रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन वो लाया हुआ हमारा ही है। सुने, वो चला रहे पूरे सिंध, पूरे पंजाब, पूरे केपी के हर जगह। अच्छा, बेहतरी की बात इसलिए उस वक्त आएगी जब आप रोडों से उठकर, जब चारों तरफ से मुल्क के हालात, ये आज इंडिया की आप खबरें देख लें जो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, जो अमेरिका की अपनी डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, और जो अमेरिका मेरा पॉइंट ये था कि इस साल 2021 के एंड में कुछ चीजें डिलीवर होगी आवाम को। चीजें बेहतर होंगी। आप कोई इतना खाली हमने हवा बनाए हुए, पेट्रोल पहले भी 120 रुपए पर गया है, उस चीनी पहले भी 100 रुपए पर गई है, जरदारी साहब के दौर में 120 रुपए लीटर पेट्रोल के है। इसी तरह से ठीक है मोहतरमा, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। व्यूअर्स, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।